پروکار تقریب میں ہدیہ تہنیت بسلسلہ تقریب پذیرائی تاریخ سیالکوٹ از حافظ اشفاق نیاز پیش کروں۔ مقام شکر ہے امید تیری آج بھر آئی، مقام شکر ہے امید تیری آج بھر آئی، تیرے اشفاق جذبے کی ہوئی ہے اب تجزیہ۔ مقام شکر ہے امید تیری آج بھر آئی، تیرے اشفاق جذبے کی ہوئی ہے اب پذیر آئی، مبارک ہو ہوئے ہیں کامراں سب بلبلے تیرے، مبارک ہو ہوئے ہیں کامراں سب بلبلے تیرے، سمیٹیں دادنا احباب سے کیوں حوصلے تیرے، مبارک ہو ہوئے ہیں کامراں سب بلبلے تیرے، سمیٹیں دادنا احباب سے کیوں حوصلے تیرے، اور دیارے شعر میں وہ اور بھی ہیں تیرے فن پارے، دیارے شعر میں وہ اور بھی ہیں تیرے فن پارے، حوالے سے ہیں جن کے معترف اہل سخن سارے، دیارے شعر میں وہ اور بھی ہیں تیرے فن پارے، حوالے سے ہیں جن کے معترف اہل سخن سارے، اور مرتب شہر کی تاریخ کرنا کارنامہ ہے، مرتب شہر کی تاریخ کرنا کارنامہ ہے، تمہارے سر بفیض اس کے فضیلت کا امامہ ہے، مرتب شہر کی تاریخ کرنا کارنامہ ہے، تمہارے سر بفیض اس کے فضیلت کا امامہ ہے، اور سبھی اہل ادب اس کے لیے ممنون ہیں تیرے، سبھی اہل ادب اس کے لیے ممنون ہیں تیرے، بہت پیر و جواں گرویدہ و مفتون ہیں تیرے، سبھی اہل ادب اس کے لیے ممنون ہیں تیرے، بہت پیر و جواں گرویدہ و مفتون ہیں تیرے، بلند اس کی بدولت ہے علم تیری بصیرت کا، بلند اس کی بدولت ہے علم تیری بصیرت کا، عیاں پہلو بھی ہے استاد سے تیری عقیدت کا، بلند اس کی بدولت ہے علم تیری بصیرت کا، اور عیاں پہلو بھی ہے استاد سے تیری عقیدت کا، اور تجھے تقریب میں یوں دیکھ کر پرجوش اور شاداں، تجھے تقریب میں یوں دیکھ کر پرجوش اور شاداں، تیرا استاد تجھ پر خلد میں بھی ہے بہت نازاں، تجھے تقریب میں یوں دیکھ کر پرجوش اور شاداں، تیرا استاد تجھ پر خلد میں بھی ہے بہت نازاں، پیام تہنیت لو آفرین سے اب بسط الفت، پیام تہنیت لو آفرین سے اب بسط الفت، یہی تحفہ تمہارے واسطے اشفاق ہے دولت، پیام تہنیت لو آفرین سے اب بسط الفت، یہی تحفہ تمہارے واسطے اشفاق ہے دولت، اور مقام شکر ہے امید تیری آج بھر آئی، تیرے اشفاق جذبے کی ہوئی ہے اب پذیر آئی، مبارک ہو ہوئے ہیں کامراں سب بلبلے تیرے، اور سمیٹیں دادنا احباب سے کیوں حوصلے تیرے۔ ہر ایک آنکھ میں ڈھونڈو مزاج الفت کا، ہر ایک آنکھ میں ڈھونڈو مزاج الفت کا، ہر ایک دل میں محبت تلاش کرتے رہو۔ یہ خوبصورت شعر معروف شاعر، ادیب اور ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر اصغر یعقوب صاحب کا ہے۔ ڈاکٹر اصغر یعقوب صاحب تمغہ سیالکوٹ حاصل کر چکے ہیں۔ میں گزارش کرتی ہوں جناب ڈاکٹر اصغر یعقوب صاحب سے کہ وہ جناب اشفاق نیاز کے حوالے سے اپنا کلام پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر اصغر یعقوب صاحب۔ اشفاق نیاز کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، ان کی تحریروں اور ان کی شاعری کے حوالے سے اگر یہاں پر گفتگو کی جائے تو میرا خیال اس کے لیے بہت سا وقت درکار ہے۔ اشفاق نیاز کے ساتھ یا جیسے کہ بشیر قمر صاحب نے یہاں پہلے بتایا ہے، میرے بھی اشفاق نیاز کے ساتھ کچھ ایسے تعلق ہیں
گو کے بشیر کمر جیسے تعلقات نہیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ میری ان کے ساتھ مشاورت اور تعلق جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہا ہے۔ اگر میں ان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں تو میرا خیال یہ وقت آپ اسے دوستوں کو دینا چاہیے تاکہ وہ ان کی تحریروں کے بارے میں اظہار خیال کر سکیں۔ میں ان کی اس کاوش کے حوالے سے ایک قطعہ ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا عزم تمہیں لے گیا بلندی پر، تمہارا عزم تمہیں لے گیا بلندی پر، خدا کرے بہاروں سے ہم کنار ہو تم، دعائیں شامل ہیں اس میں کچھ بزرگوں کی، خدا کرے بہاروں سے کامگار ہو تم۔ میں چند ایک اشعار جو ہے وہ اشفاق نیاز کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ زینت میرے شہر کا ترجمہ اشفاق ہے، زینت میرے شہر کا ترجمہ اشفاق ہے، زندگی کے قافلوں کا سازواں اشفاق ہے، اس کی ہر تحریر اجلی اور اجلا بانگ پن، اس کی ہر تحریر اجلی اور اجلا بانگ پن، عقل و فہم و فکر پر بھی ذوق شان اشفاق ہے، لوہے دل پر نقش کرتا ہے شعور زندگی، لوہے دل پر نقش کرتا ہے شعور زندگی، طالب علم و ہنر کا آسمان اشفاق ہے، دے رہا ہے اہل دنیا میں بصیرت کو فروغ، دے رہا ہے اہل دنیا میں بصیرت کو فروغ، غنچہ ہے زندگی کا باغباں اشفاق ہے، دل کی ویراں بستیوں میں لاتا ہے رنگ گلاب، دل کی ویراں بستیوں میں لاتا ہے رنگ گلاب، زندگی کے نور و رنگ کا راستہ اشفاق ہے، اس کے دم سے بزم امکان قائم ہے آباد ہے، اس کے دم سے بزم امکان قائم ہے آباد ہے، سب حریفوں کے لیے ایک انتہا اشفاق ہے، خاصہ انسانیت کی کرتا ہے تشہیر یہ، خاصہ انسانیت کی کرتا ہے تشہیر یہ، ہم سے چوریدہ اثروں کی داستان اشفاق ہے، اپنے دامن بے سمو کر کہکشاں کے دائرے، اپنے دامن بے سمو کے کہکشاں کے دائرے، قلب بسمل کے لیے تسکین جاں اشفاق ہے، ایک تجلی ایک تبسم ایک نگاہ کے فیض سے، ایک تجلی ایک تبسم ایک نگاہ کے فیض سے، اپنے حرف و لفظ میں جادو بیان اشفاق ہے، کھولتا ہے نحق کھولتا ہے نحق کے تدبیر سے راز حیات، یورشوں کے درمیان امن و امان اشفاق ہے، زینت میرے شہر کا ترجمہ اشفاق ہے، زندگی کے کافروں کا سارواں اشفاق ہے۔ ہماری اس تقریب کی مہمان خاص بیگم نسیم اختر خواجہ صاحبہ، آپ MPA پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تشریف لا چکی ہیں پروگرام میں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی اب اظہار خیال کے لیے میں گزارش کرتی ہوں مدثر رانا صاحب ریڈیو براق سے، ریڈیو براق کے بہت مشہور پریزنٹر ہیں، یہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ مدثر رانا صاحب حضرات کو، جناب شاہد اقبال ڈار صاحب کو، ڈپٹی کمشنر صاحب کو، آپ کو، بیگم نسیم خواجہ صاحب اور سبھی کو میں دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے اسلام پیش کرتا ہوں، اور میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ میرا تعلق اشفاق نیاز صاحب سے اسکول ٹائم کا ہے،
اگرچہ میرے سے 1-2 کلاس سینئر تھے اشفاق صاحب، لیکن مجھے بھی یہ اعزاز حاصل رہا کہ رشید نیاز صاحب سے تعلیم حاصل کی اور اردو کے ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے۔ تو اشفاق نیاز کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا، ایک مفکر نے کہا تھا کہ بہاؤ کی سمت میں لاشیں تیرا کرتی ہیں جبکہ مخالف سمت میں تیراک۔ اور جو اشفاق نیاز ہے یہ دور حاضر میں جبکہ جدید دور میں بھی یہ ایک نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی اپنے ہی مسائل میں الجھا ہوا ہے، اور جب ایسی صورتحال میں کوئی اپنے شہر کے لیے یا وطن کے لیے ٹائم نکالتا ہے اور کچھ ایسی تصانیف مرتب کرتا ہے تو یقیناً اشفاق نیاز خود ایک ہسٹری بن چکی ہے۔ اور اگر ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو بہت چند بکس ایسی ہیں جو کہ ہسٹری کے اوپر لکھی جا چکی ہیں۔ مجھے صبح اتفاق میں پچھلے 5-6 برس سے دوسرے پروگرامز کے علاوہ ہر سنڈے کو ایک پروگرام کرتا ہوں جو ہوتا ہی ہسٹری کے ریلیٹڈ ہے۔ تو اشفاق صاحب کی جو پہلی تصنیف تھی اس سے بھی ہم نے بہت کچھ کمیونٹی تک پہنچانے کی کوشش کی، اور جو ان کی نئی بک آج آئی ہے میں نے اس کو بس چکھا ہی ہے، سرسری نظر دوڑائی ہے، تو انشاءاللہ جو ہم اس کو دیکھیں گے تو آئی ڈو اپریشیٹ مسٹر اشفاق نیاز، اور جہاں تک ممکن ہوگا ریڈیو براک 104 FM اور STV پر آپ کو ہم نہ صرف پروجیکشن دیں گے بلکہ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ اشفاق نیاز جیسے ہمارے معزز سر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوشش کیا ہے کہ تمام شعبوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور اگر ہم سب بھی اپنی ڈیوٹیز میں انصاف کرنا شروع ہو جائیں تو ایک نہیں بہت سے اشفاق نیاز پیدا ہوں گے۔ اور آج اس عمل کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اشفاق نیاز کی زندگی کا مطالعہ کریں، یہ آپ کو پتہ لگے گا، تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا، کیونکہ ہم مل کے بہت سے پروگرامز بھی کر چکے ہیں کہ کس قدر ہارڈ شپس کے ساتھ آج یہ ان کی بک آئی ہوگی۔ تو ہم سب جو کچھ اس اہم شخصیت کے لیے، سیالکوٹ کی بہترین شخصیت کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکیں وی شوڈ ڈو دیٹ، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ زندہ دل سے نہیں پوشیدہ ضمیر تقدیر، زندہ دل سے نہیں پوشیدہ ضمیر تقدیر، خواب میں دیکھتا ہے عالم نو کی تصویر، اور جب بانگ اذاں کرتی ہے بیدار اسے، اور جب بانگ اذاں کرتی ہے بیدار اسے، کرتا ہے خواب میں دیکھی ہوئی دنیا تعبیر۔ اب میں گزارش کرتی ہوں جناب خالد لطیف صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ چیف ایڈیٹر CP میگ سیالکوٹ ہیں، معروف صنعت کار ہیں، صحافی اور دانش پرور ہیں۔ جناب خالد لطیف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر بیگم نسیم ناصر حاجہ صاحب اور شاہد اقبال ڈار صاحب، اشفاق نیاز صاحب اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ بشیر کنور صاحب نے فرمایا تھا کہ جب دو دوست یا دو لوگ اکٹھے ملتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی قدریں مشترک ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی، بلکہ ایگزیکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا عرصہ اس بلڈنگ کو ہو گیا ہے چیمبر آف کامرس کو، ایگزیکٹلی اتنا ہی عرصہ ہمارا، بلکہ اس سے تھوڑا پہلے ہی تھا، لیکن جو ہماری خاص ملاقات ہوئی تھی ادھر چیمبر آف کامرس میں ہی ہوئی تھی۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے اپنا فیصل قریشی صاحب جو ادھر سیکٹری تھے، اسسٹنٹ سیکٹری تھے۔ تو میں ادھر مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی تو ادھر میں اس ہال کو سب سے پہلے میں نے مہینوں تک یوز کیا تھا، یعنی میں جرمن لینگویج کی کلاسز دیتا تھا، اور کافی سارے بزنس مین جو ہیں وہ یعنی انہوں نے یہ کورسز میرے ساتھ کیے ہوئے ہیں جرمن لینگویج کے۔ تو ادھر میں آیا ہوا تھا تو میری ملاقات فیصل صاحب کے ذریعے جو ہے ان کے اشفاق نیاز صاحب سے ہوئی۔
उन दिनों चूँकि मैं जर्मनी से आया था तो उधर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब वो ये है कि जो कल्चरल राज भी और ये वो उन ममालिक में शायद उनकी तरक्की का राज भी यही है कि उन्होंने ना तो अपने पास्ट को छोड़ा, ना उन्होंने अपने यानी हाल को वो इग्नोर यानी नज़रअंदाज करते हैं। तो मुझे ये कमी बड़ी महसूस हो रही है। जो कुछ लोग इधर हमारे काम कर रहे थे तो मैंने महसूस किया कि या तो वो सीरियस ही नहीं है काम करने में, या फिर ये है कि वो उनके पास वसाइल नहीं। तो जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा भाई आप जस्ट मुझे ये बताएं कि मैंने आपके लिए क्या करना है या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपका इतना बड़ा मिशन है, आप जो है ये शुरू कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है। उस दिन से हमारी दोस्ती शुरू हुई। फिर हम जैसे कि बशीर साहब ने कहा तो बशीर साहब के साथ हम गाड़ी पे, और इवन मुझे फ़ोटोग्राफी का बड़ा शौक़ था, तो हम लोग जो है ना ये इधर अपना पूरन, कभी पूरन के भगत के कुएँ पे, कभी हम वो अपना वो नारवा के करीब जो है अलीपुर सईदा उधर, और कभी जो है ना हम यानी ये एक ख़ास मुद्दत तक मैं इनके साथ जाता रहा। और ये काम इतना बड़ा है कि वो उसके बाद जो कुछ इनके साथ हुआ वो एक लंबी स्टोरी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बड़ा जान जोखों का काम था जो इन्होंने किया। तो मुझे ये कहते थे कि भाई आप मतलब मेरे साथ क्यों है, या आपको क्या, ये उस वक्त की बात थी। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि भाई आप, इसके बाद इन्होंने एक बुक जो है वो 400 सफ़ात की निकाली, फिर 700-800 सफ़ात की निकाली, अब जो है तो मेरा 1000 के ऊपर वो चले गए हैं। क्वालिटी आपके सामने है। इन्होंने कोशिश की है कि इसको मतलब हर तरीके के साथ जो है उसमें जो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उसके साथ इंसाफ किया जाए। कहीं की थोड़ी बहुत हामियाँ भी नज़र आ सकती हैं, लेकिन आज के दौर में चूँकि हम सिटी मैन निकाल रहे हैं तो मुझे अंदाज़ा है कि ये किसी एक बंदे वाला काम नहीं है, क्योंकि पहले जो हिस्ट्री होती थी वो जस्ट एक स्टोरी होती थी कि किसी बंदे के मतलब आपने लिखने में एक स्टोरी है। आज ये पूरी एक साइंस बन गई है, पूरी एक टेक्नोलॉजी है। इसमें यानी कैटेगरीज इतनी होती हैं कि अगर बंदा चाहे भी तो वो इंसाफ जो है ना पूरे तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन इनकी बात इसके बाद मैं अभी बातें करूंगा आपसे थोड़ी सी, क्योंकि ज़रूरी है। अगर आज भी हमने बातें नहीं, इनकी शख्सियत को नहीं ज़ाहिर करना तो फिर हमने कब करना है, क्योंकि जो इन्होंने मेहनत की है उसके मतलब ज़रूरी है कि वो बताएं। उस्ताद की बात की थी हमारे बुजुर्गों ने और वालिदैन की। पहले मैं वालिदा की बात करता हूँ कि ये इतने मेहनती और इतने इनके सामने मसाइल और ये सारा कुछ था, लेकिन वालदा के मतलब ये इतने सेंसिटिव थे कि उनकी दुआएं लेके घर से चलते थे, और इनकी तवज्जो हर तरफ वालदा के मतलब रहती थी। और आखिरी जो 4-5 साल थे इनकी फौतगी से पहले, और मुझे पता है कि थोड़ी सी इनकी वालदा को पेन हुई है, घर से कोई मिस कॉल आई है, तो ये जो काम कर रहे थे उधर ही ऐसे इसको फेंकते थे और वो घर की तरफ चले जाते थे, और फिर दोबारा उनको मेडिसिन वगैरह दिए दिला के सारा कुछ इनको दबा दबू के फिर ये वापस अपने काम पे आते थे। इसके अलावा इनकी किताब और ये जो उस्ताद के मर्तबे, पहले मैं उस्ताद के मर्तबे पे बात कर दूँ कि हमने देखा है कि दुनिया की तारीख में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे यहाँ तो है ही इस्लामी इक़्तिदार में जो उस्ताद का बहुत मर्तबा है, लेकिन जो पूरी दुनिया में देखा जाए तो जिन लोगों ने भी तरक्की की है वो उन्होंने अपने उस्ताद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अब इवन आप देखें कि अल्लामा इकबाल है जो मौलाना रूमी के साथ अकीदत रखते थे और उनको अपना उस्ताद मानते थे, तो वो अपने कलाम में जा बजा जो उनका जिक्र करते हैं और वही एहतराम देते हैं जैसा कि वो किसी अपने फिजिकल कोई बंदा किसी उस्ताद को दे सकता है। अब अगर आप मौलाना रूमी को स्टडी करें तो वो अपने जो उस्ताद थे उनका वो उसी तरीके से वो जिक्र करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने अपने उस्ताद का जो है मर्तबा उसको और उसकी उनकी जो ये कर सकते थे उसमें कभी भी कमी नहीं आने दी। अब रह गई बात किताब के मतलब, तो किताब पे जब ये स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त कोई क्रिटिसिज्म आया था थोड़ा सा, जी ये तो इनके उस्ताद ने किताब लिखी है। थोड़ी देर के लिए मैं भी तजबज़ में रहा कि भाई ये अब वो लोग सही सच्चे हैं या ये लोग सच्चे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा गलत किसी को भी नहीं कहूँगा, वो भी अपनी जगह सच्चे थे और ये भी अपने थे। और वक्त ने साबित किया कि इशफाक नियाज जो है वो बाजी ले गया। वो इस तरह के
ان کے استاد بھی ماشاءاللہ بڑے دور اندیش تھے, انہیں بھی پتا تھا کہ میں کون, مجھے جسٹ یہ کہ وہ ڈنڈا ریس نہیں ہوتی جو اسٹک والی ریس ہوتی ہے, مجھے تو وہ یہ نظر آیا کہ بھئی ان کے استاد تھے, انہیں اپنے آخری وقت میں یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ میں بس اب میرے جو ہے آخری وقت ہے, قریب ہے, تو اس کام کو بھی آگے بڑھانا. انہوں نے اس عین وقت میں یعنی بر وقت آگے ہو گئے تھے, وہ اسٹک جو ہے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی, اور اشفاق نیاز نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر آگے دوڑو اپنے جو اس کو بڑھا دی. اور ہمارے جیسے لوگ یا دائیں بائیں جو کرٹیسائز کرنے والے وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ بھئی طریقے شاگرد کدھر گئی, ٹھیک ہے. تو شاید یہ تھوڑا سا جو فرق ہے, کچھ لوگوں کو اختلاف ہو شاید اس لیے ہو کہ طریقے سے شاگرد غائب ہو گئی, یعنی کہ ان کے ہاتھ, یعنی اچھا ہی ہوا کہ جو بندہ اس کا صحیح مستحق تھا اس نے اس کو لیا, اور اس دن کے بعد جو ہے ایک دن ایک رات انہوں نے اس کے اوپر محنت کی, اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ یہی واز دی رائٹ پرسن کے جو اس کو آگے لے کے ان کے مشن کو آگے لے کے بڑھ سکے. اب ان کے جو آگے بڑھنے کا جو سفر ہے اس میں یہ طریقے سیالکوٹ کے پیچھے ایسے پڑے گے جیسے فرحاد شیریں کے پیچھے پڑ گیا. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک جذبہ تھا, اس کے پیچھے بھی ایک جذبہ تھا کہ جو کدال لے کے تو پہاڑوں کے اندر سے وہ اس نے نہر نکال دی تھی. اب یہ ایگزیکٹلی میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو محنت ان کے ساتھ تھی وہ نہ صرف محنت ہی تھی بلکہ ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب بھی تھا, کیونکہ اس بندے کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے, بالکل ایبسلیوٹلی کوئی چیز نہیں تھی. آپ کہہ رہے ہیں والدین کی دعاؤں کے ساتھ وہ آگے بڑھے, یہ والدہ اور پلس والدہ اور والد کی دعاؤں کے ساتھ بھی آگے بڑھے, اور اس کے علاوہ اگر میں کہوں تو میرے خیال میں اس کے علاوہ والد صاحب کی جو یعنی گالیاں تو نہیں میں کہہ سکتے لیکن چڑکیوں کا بھی ساتھ ان کے ساتھ رہا, کیونکہ ان کا یہ بہنیں میری ہیں دیکھ رہی ہیں اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے ہر ایک منٹ کا پتہ ہے ان کا. تو یہ تھا کہ ان کے مسائل اس طرح کے تھے کہ انہوں نے اپنے گھر کو بھی آگے اپنے یوسا بیٹھے ہوئے بھائی تھے ان کے, تو انہوں نے اپنے گھر کو بھی آگے لے کے چلنا تھا. حالات اس طرح تھے کہ والد صاحب بھی اب ریٹائر ہو گئے ہوئے تھے اپنے جو بھی وہ اپنے ان کی مصروفیت تھی اس سے, تو ان حالات میں طریقے سیالکوٹ جیسے پروجیکٹ جو ریکوائر کرتا تھا, پیسہ بھی اس میں چاہیے ہوتا تھا اور وقت کی بھی ضرورت ہوتی تھی, گھر کو بھی لے کے چلنا تھا آگے. تو ان حالات میں جو ہے نا انہوں نے جس طرح نہ صرف سروائیو کیا بلکہ انہوں نے وہ بہت آگے تک اس کو لے کے گئے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ انہی ہی کا صرف یہ کردار تھا کہ یہ اس کو آگے لے کے چلے. اس کے علاوہ میں ان کی یہ تو طریقے سیالکوٹ کی بات ہے, اس کے علاوہ اس دوران میں یہ دیگر ایکٹیویٹیز جو تھی ان کی اس کو بھی میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ کافی عرصہ تک میں بھی ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتا رہا, کیونکہ ہم لوگ بہت سارے پروگرام کرواتے رہے ادھر. تو نیاز اکیڈمی کے پینل پہ ہم نے بہت زیادہ وہ پروگرام وغیرہ بھی کروائے. تو یہ اتنی باتیں کہ اگر علیحدہ سے ایک بک ان کی جدوجہد پہ لکھی جائے نا تو وہ ایک پوری بک بنتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو میں ادھر ہی ختم کروں گا. اللہ اللہ بس انگشت کی حرکت سے, اللہ اللہ بس انگشت کی حرکت سے چاند کی کرتا ہے 2 ٹکڑے برابر کوئی. دیکھیے باغ رسالت میں عجب پھول کھلے, دیکھیے باغ رسالت میں عجب پھول کھلے, کوئی حسنین ہے زہرا کوئی حیدر کوئی. یہ بے حد پرسوز ایمان آفرین منقبت کے اشعار میں نے نامور شاعر جناب زاہد بخاری صاحب کی کتاب احرام وفا سے پڑھے. آپ نامور شاعر ہیں اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہیں. میں جناب زاہد بخاری صاحب کو دعوت کلام دیتی ہوں کہ وہ اشفاق نیاز صاحب پر اپنا منظوم کلام پیش کریں. جناب زاہد بخاری صاحب. محترم جناب اشفاق نیاز صاحب چند شعر. تجھ کو اشفاق نیاز, تجھ کو اشفاق نیاز, ہو مبارک یہ کتاب, تجھ کو اشفاق نیاز, ہو مبارک یہ کتاب, تجھ کو اشفاق نیاز,
मुकाबा कर दिया है तूने रकम, एक हसी इल्म का बाब फिर से कौन लिखेगा ऐसी बेमिसल तारीख, फिर से कौन लिखेगा, फिर से कौन लिखेगा ऐसी बेमिसल तारीख। इस अनोखी काबिश का मिल सकेगा न जवाब, इस अनोखी काबिश का मिल सकेगा न जवाब। वाक़यात पढ़ पढ़ कर बाग बाग होता है दिल, वाक़यात पढ़ पढ़ कर बाग बाग होता है दिल। गुलसितां ख्यालों का तूने कर दिया है शादाब, गुलसितां ख्यालों का तूने कर दिया है शादाब, गुलसितां ख्यालों का। और शेर देखिए, दायरे अक्ल तेरा कितने औज पर पहुंचा, दायरे अक्ल तेरा कितने औज पर पहुंचा, दायरे अक्ल तेरा कितने औज पर पहुंचा। मुश्तरी ओ ज़ुहरा का हो गया है तू हमरकाब, मुश्तरी ओ ज़ुहरा का हो गया है तू हमरकाब। कर लो है जहां वालो, कर लो है जहां वालो, कदरे अशफाक नियाज। कर लो है जहां वालो, कदरे अशफाक नियाज। ऐसे कब ज़माने को मिलते हैं दुरे नायाब, ऐसे कब ज़माने को मिलते हैं दुरे नायाब, ऐसे कब ज़माने को। रब्बे दो जहां के हुजूर है दुआ ये ज़ाहिद की, रब्बे दो जहां के हुजूर, रब्बे दो जहां के हुजूर है दुआ ये ज़ाहिद की। हर घड़ी चमकता रहे बन के तू रोशन महताब, हर घड़ी चमकता रहे बन के तू रोशन महताब। तुझको अशफाक नियाज ओ मुबारक ये किताब, कर दिया है तूने रकम, एक हसी इल्म का बाब। तुझको अशफाक नियाज ओ मुबारक ये किताब। वो इल्म अपने बुतों का है आप इब्राहिम, वो इल्म अपने बुतों का है आप इब्राहिम, किया है जिसको खुदा ने दिलो नजर का नदीम। वो इल्म कम बसरी जिसमें हम किनार नहीं, वो इल्म कम बसरी जिसमें हम किनार नहीं, तजल्लियात कलीम व मुशाहिदात हकीम। अब मैं मुल्तमिस हूँ मिसेस जाहिदा ख्वाजा साहिबा से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मिसेस जाहिदा ख्वाजा साहिबा
Headmistress Government Islamia Girls High School, Urdu Bazar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मत सहल हमें जानो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मेहमानाने ग्रामी कदर इज्जतमाब मोहतरम जनाब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर साहिब, मोहतरमा जनाबा मिसेस नसीम नासिर खाजा MP सियालकोट, और मेरे हम शहर इकबाल के भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक फूल अगर चाहे तो तूफान गुलिस्तान बन जाए, एक फूल अगर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक कतरा अगर चाहे तो तूफान बन जाए। खूने इंसान के कतरे की है अजमत इतनी, खूने इंसान के कतरे की है अजमत इतनी, चाहे तो किसी तारीख का उन्वान बन जाए। सबसे पहले मैं जनाब अशफाक नियाज साहिब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने तरीके सियालकोट जैसी शाहकार और अनमोल किताब लिखकर आज अपने आप को मनवा लिया है कि वाकई उनके पास मालूमात का एक बेशुमार खजाना है, और उन्होंने इस खजाने को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा बल्कि दूसरों को भी इससे फैज़याब किया है। यूँ कहना चाहिए कि एक उस्ताद जिस तरह मौजूदा और आने वाली नस्लों को अपने इल्म से नवाजता है, अशफाक नियाज साहिब ने तरीके सियालकोट लिखकर वो मुफीद मालूमात दी हैं, आने वाली नस्लें भी उनकी मशहूर रहेंगी। मेरे नज़दीक उन्होंने इस किताब के जरिए इल्म देकर अपने आप को उस्ताद जैसे अजीम और बुलंद मर्तबे पर फाइज किया है। अरूज इतना नसीब हो तुझे ज़माने में, अरूज इतना नसीब हो तुझे ज़माने में कि आसमां भी तेरी वस्तों पे नाज करे। याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, रोक लेता है जो चलते हुए तूफानों को। अशफाक नियाज साहिब ने इस किताब में बड़ी जांफशानी और महारत से कदीम शहर सियालकोट की तारीख लिखी है। उन्होंने इस किताब में हर पहलू पर रोशनी डालकर हर एक की रगे सांस को छेड़ा है और हर एक की तवज्जो और हमदर्दियां हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। और उन्होंने इस किताब में सियालकोट के इल्मी, अदबी, सकाफती, मुआशरती, सियासी, मजहबी हालात व वाक़यात, मुख्तलिफ तरह सरगर्मियाँ और शख्सियतों पर रोशनी डाली है। चल पड़े जब सूए मंजिल दिल को रहबर मानकर, चल पड़े जब सूए मंजिल दिल को रहबर मानकर, हाथ में बस बेखुदी का जाम होना चाहिए। कहीं तो अशफाक नियाज साहिब ने इस किताब में औलिया कराम के हालात ज़िंदगी और करामात को मौज़ूए बहस बनाया है, और कहीं मशाहिर सियालकोट से मुतारिफ करवाया है, कहीं संत और हरफत और फन सहाबत पर उनका कलम जादू बयानी कर रहा है, तो कहीं नामवर सियासी शख्सियत, सहाफ़ी, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट में मुनक़्क़िद होने वाले नाज़िम, ज़िले इंतज़ामिया, EDO साहिबान, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बमान टेलीफोन नंबर्स के जरिए अपनी मेहनत का सबूत दिया है, तो कहीं सर्जिकल इंडस्ट्री और सियालकोट के कदीम तालीमी अदारों पर रोशनी डाली है। इंसान का कल्ब जब संभल जाता है, इंसान का कल्ब जब संभल जाता है, जादू हर शय में उसका चल जाता है। ढल जाते हैं दो जहां ने सांचे में, ढल जाते हैं दो जहां ने सांचे में, अंदाजे निगाह जब बदल जाता है। गोया इनकी गुनागू मालूमात का हर एक गुलदस्ता है जिससे इंसान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिस तरह का चाहे फूल तोड़ सकता है। आसानियों से न पूछ मंजिल का पता, आसानियों से न पूछ मंजिल का पता, अपने सफर के राह में पत्थर तलाश कर, जर्रे से पूछ ले कायनात की तफसीर, कतरे के वस्तों में समंदर तलाश कर। आखिर में दोबारा अशफाक नियाज को इतनी कामयाब और हकीकत पर मबनी किताब लिखने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। दुआ गो हूँ कि खुदावंद करीम इन्हें इसी तरह अपने इल्म से दूसरों, अपने फैज़ इल्म से दूसरों को नवाजने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें जिंदगी के हर मौका पर कामयाब कामरानी नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। मुफ्ती आलमा वेद तस्दीक की अशफाक ने जिगर दा खून निचोड़िया है। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अफ़वद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद या क़य्यूम बिक बिरहमतिका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुक्रिया। मैं गुजारिश करती हूँ प्रोफेसर एजाज अहमद भट्ट साहब से कि अपने ख्याल का इज़हार करें। आप साबिक वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट हैं। शाहिद साहिब और
शायर सियालकोट कहना चाहिए, किसी साहब में कहना चाहिए, शायरों को शायरों के नाम से पुकारना चाहिए। तो मुझे एक थोड़ी सी एलर्जी है कि मैं अपने नाम के साथ प्रोफेसर कहना नहीं चाहता। मैं पिछले दिनों एक तकरीर में मौजूद था तो मैंने कहा कि आप मुझे प्रोफेसर के नाम से ना जाने, नाम काफ़ी होता है। अब मुझे थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी है कि मेरा भी ख्याल था कि हमारी फैमिली में कुछ ऐसे मुकर्रर भी हैं जो बैंक में तो ज़ाहिर है मुझे नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पे असम्बली में या स्कूल में बारह ये ज़ाती सी बात थी। असल बात यह है अशफाक नियाज़ की किताब की। आज से 50 साल पहले जो तारीख का कॉन्सेप्ट था वो यही था, और चूँकि पाकिस्तान में तारीख़ इंग्लिस्तान, तारीख़ यूरोप, तारीख़ हिंदुस्तान पढ़ाई जाती थी। ये बात इसलिए नहीं कर रहा वसीम साहबा के मेरे होम गवर्नमेंट का सब्जेक्ट ये है, मैंने जो अपनी मिडिल में तारीख पढ़ी थी, तारीख का ये कॉन्सेप्ट था कि सरकारी तौर पे तारीख लिखी जाए। डॉक्टर मुबारक अली जो इस दौर के अच्छे हिस्टोरियन हैं, वो हमें बताते हैं कि जो तारीख लिखी जाती थी वो हुक्मरानों की मर्जी से लिखी जाती थी। या तो ये लिखी जाती थी कि जो हमसाया मुल्क दुश्मन है उसमें क्लियर निकाले जाएं, या हमें ये बताया जाता था कि गदर हुआ था। ये गालबन 1960 या 58 के बाद आज़ादी ये हिंद को की तरफ से इस्तेमाल किया गया। बात है तारीख की। जो तारीख का पुराना नजरिया ये था कि माजी की बातें जो किताबों में दफन है, रद्दी की किताबों में मिलती हैं, उनको नकल करके तो लिख के उसको तय बनाया गया। ये था तारीख का पुराना नजरिया। लेकिन तारीख दरअसल नाम ये नहीं है कि आज से 100 साल या 1000 साल पहले या 10,000 साल पहले सियालकोट में क्या था क्या नहीं था, वो बैकग्राउंड है। इत्तेफाक से बल्कि खुशकिस्मती से रशीद नियाज़ साहब मेरे उस्ताद थे इस्लामी हाई स्कूल में छठी जमात में, वो मैं तारीख हिंदुस्तान पढ़ाया करते थे। उन्होंने जो तारीख लिखी मेरे पास अभी है वो सिर्फ तारीख, अब देखिए तारीख कभी भी नहीं सियालकोट के बारे में 27 किस्म की तारीखें मैंने पढ़ी हैं। सबसे पहली तारीख जो रंगपुरे में पहला छापाखाना अब तो समाज ने कायम किया और लिखा और रवायतों से लिखा, तो फलान ये कहा फलान ये कहा, और आखिरी किताब अशफाक नियाज़ मेरे सामने है। मैं ये देख रहा था कि 26 किताबों में तकरीबन कोई किताब भी 70-80 सफ़हात से ज़्यादा है। तो बात कह रहा हूँ मैंने वो तवारीख पढ़ी है, और वो इसलिए भी कि किताबत वहाँ से हाथ से होती थी, कंप्यूटर मोटी किताबत होती थी। आजकल अगर वो 50 सफ़े हैं वो तकरीबन 100 सफ़े। ये मैं देख रहा था कि वो कोई किताब आखिरी किताब जो लोगों ने पढ़ी वो मोहम्मद फौक की थी, वो गालबन 34 पेजेस की है, जो ओरिजिनल से ये उसकी जो तहामत है भारी महंगी है। मुझे हैरानगी इस बात की है कि अशफाक नियाज़, जिसको मैं सिर्फ नियाज़ अकेडमी का एक मंचला नौजवान समझता था कि शायद पैसे इकट्ठे करके नियाज़ अवार्ड तकसीम करता है, ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था। मुझे उस सदाई साहब को पहला नियाज़ अवार्ड दिया था। क्या मैं ये समझता था कि मरे कॉलेज तो आया और कहता है मैंने यहाँ पे एक ज़हानत शो कायम करना है और किस तरीके से आप कराएं, और बड़ी जिद करके उसने ज़हानत का प्रोग्राम वो कराया। उसमें भी तरीके से आपको के सवाल आए। मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि कोई बंदा, एक बंदा जो कि पूरे अदारे का काम है, एक तहरीर का काम है, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम है, अकेला बंदा इतनी चीज़ें लिख सकता है, जमा कर सकता है। इतराज़ करना तो बड़ा आसान है। वो मेरे दोस्त कहा करते हैं कि डार्ट शुगर नुक्ताचीनी करनी बहुत आसान है, चीनी के दो आप ले रहे नुक्ताचीनी करनी, लेकिन उस शख्स से पूछें जिसे रातें जाग के चीज़ें इकट्ठी करके दफ्तरों के बाहर खड़े होके चीज़ें इकट्ठी की हैं, उनको रीराइट किया है। तारीख सिर्फ माजी का नाम नहीं है। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि तारीख का नजरिया तब्दील हो चुका है। वो तारीख पुरानी किताबों वाली बात खत्म होगी, और मैं इसे अशफाक नियाज़ की तारीख नहीं मानता। मैं इसे तारीख सियालकोट नहीं कहता, मैं इसे इंसाइक्लोपीडिया कहता हूँ। तारीख तो ये है कि बचपन से हम भी सुनते आए और पढ़ते भी आए हैं कि बार बार जिक्र आता है उसका, पोरस का,
जिक्र आता है राजा रसालू का, लोगों का, आप काफ तक सुनते हैं, लेकिन कोई बंदा जो आज बंदा जिंदा है, अशफाक ने तारीख नहीं लिखी, उसने लोगों को तारीख में अमल किया है, लोगों को तारीख के सफात पे जिंदा किया है। आज नहीं, आज से 50 साल बाद कोई मौरख, कोई रिसर्चर, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि ये तारीख नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया है, ये किताब नहीं, ये रेफरेंस बुक है। ये वो किताब है जो हर लाइब्रेरी में होनी चाहिए, हर अच्छी लाइब्रेरी, चाहे आपके घर में हो, चाहे स्कूल कॉलेज में, वहाँ भी चाहिए, ताकि कोई बंदा ये देख सके कि सियालकोट में सिर्फ और सिर्फ इकबाल, फैज, सिर्फ शेर व शायरी नहीं है। सियालकोट के जो लोग हैं, या सियालकोट की धरती है, उसके जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, अभी पिछले दिनों, आज से 2 साल पहले जापान का एक वफ्द आया था इकबाल मंजिल में, और वो तहकीक कर रहे थे कि सियालकोट में एक इसी ज़माने में यूनिवर्सिटी थी, और वो अपने हिसाब से उनका अपना एक प्रोग्राम था, गलत था या सही था। सियालकोट कोई गैर मारूफ सा नाम नहीं है। आप इंसाइक्लोपीडिया देखें, उसका गालबन 11 या 12वां वॉल्यूम है, 21वां, एस से शुरू होता है, सियालकोट में उसका नाम है, उसमें गुजरांवाला का नाम नहीं है, उसमें बम्बे का नाम नहीं है, उसमें पीकिंग का नाम नहीं है, सियालकोट का नाम है। यानी ये इसकी अपनी एक तहजीब है। सरदारी की ख्वाहिश है ना शाही की हवस है, सरदारी की ख्वाहिश है ना शाही की हवस है, एक हर्फ यकीन दौलत ईमान में बस है। मैं इस तकरीर की मेहमान खास बेगम नसीम अख्तर ख्वाजा साहिबा, आप MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैं, उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। बेगम नसीम अख्तर ख्वाजा साहिबा। नहायती काबिल एहतराम DCO सियालकोट, डार साहब, इजाज भट्ट साहब, डॉक्टर असर यकूब साहब, और हमारे भाई बशीर नवर साहब, जो कि मैं अभी लाहौर से सीधी इधर चैम्बर मीट के प्रोग्राम में आ गई हूँ, तो सबकी गुफ्तगू सुनी, बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर पे इजाज भट्ट साहब ने जो इस तारीख को एक इंसाइक्लोपीडिया के आईने में हमें दिखाया, मैं समझती हूँ कि ये बड़ी हकीकत में मबनी बात की है। रही इशफाक नियाज़ की बात, तो मैं उनके लिए शेर कहूँगी, क्योंकि मैं शायरा नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बड़े शायर बैठे हैं, और सामने भी बैठे और इधर भी बैठे हैं, और मैं इनके लिए शेर कहूँगी जो हमेशा बोलते आ रहे हैं हम लोग, इरादे जिनके पुख्ता हों, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज तूफानों से वो घबराया नहीं करते। जब उन्होंने आज प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया तो इन्होंने बताया कि ये मेरी पूरी तैयारी है, और मैं समझती हूँ कि जब इंसान, कोई भी इंसान जो कि जिसके अंदर किसी के लिए ऐसा जज्बा हो, जो कहना चाहिए कि माँ बाप की, जैसे अभी यहाँ पे बात हुई कि जो वालिदैन का एहतराम करता है वो दुनिया की तमाम तर नेमतों से मुस्तफ़ीद हो जाता है। इससे बड़ी और कोई दौलत नहीं है जो कि अल्लाह ताला ने हमें वालिदैन की सूरत में दी, और उनकी खिदमत करके हम लोग हासिल करते हैं। जब मेरे भाई ने यहाँ पे बात की कि इशफाक साहब अपनी वालदा की जब बीमारी का सुनते थे तो अपना कलम पेंसिल जहाँ था वहीं छोड़ के तो वो चले जाते थे अपनी वालदा की इयादत के लिए। तो मैं समझती हूँ कि जो सादतमंद होते हैं, सुराही सर नबू होकर बरा करती है पैमाना, और जो बाअदब होते हैं वो बामुराद होते हैं, जो बेअदब होते हैं वो बेमुराद होते हैं। तो मैं इनके लिए दुआगो हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करूँगी इशफाक साहब को कि जो इन्होंने आज की ये तारीख रकम की, और इसको इतने 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल इतनी मोटी किताब जो हमारे सियालकोट को एक तोहफे के तौर पर दी। मैं ये समझती हूँ कि हमारे तमाम ममालिक में इनकी ये इंसाइक्लोपीडिया तमाम लाइब्रेरियों में जानी चाहिए, और इसको इंग्लिश में इसका तर्जुमा होकर इन तमाम लाइब्रेरियों में जानी चाहिए, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से की पोस्टों पर पूरी दुनिया में लोग फैले हुए हैं। आप जिस ममालिक में भी चले जाएं, लंदन चले जाएं, पेरिस चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में
पाकिस्तान के हर हिस्से में सियालकोट का कोई ना कोई बंदा आपको मौजूद नजर आएगा और इसी तरह आपको दूसरे ममालिक में हमारे सियालकोट के लोग वहाँ पे बैठे हुए नजर आएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे सियालकोट की तारीख का एक उभरता हुआ सितारा जो कि अल्लाह ताला ने हमें इशफाक नियाज की सूरत में दिया है, मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के लिए बहुत बड़ा इनाम है। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ और इस दुआ के साथ कि आने वाले वक्तों में ये और भी बहुत सी किताबें लिखें और हमारे पढ़ने वालों को अच्छी अच्छी किताबों का मुतालिया करने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया। सब उल्टा हो रहा है तेरी कायनात में, सब उल्टा हो रहा है तेरी कायनात में, बंदा यहाँ खुदा है तेरी कायनात में। एक जरा जिंदगी से हम कलाम है, एक जरा जिंदगी से हम कलाम है, पत्थर भी बोलता है तेरी कायनात में। ए हम सुखन दिए को जलाने से पेशतर, ए हम सुखन दिए को जलाने से पेशतर, एक हाथ चल गया है तेरी कायनात में। एक शक्ल है कि आंख से ओझल नहीं हुई, एक शक्ल है कि आंख से ओझल नहीं हुई, क्या वक्त रुक गया है तेरी कायनात में। एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान का फ़नून लतीफ़ा से इतना गहरा शब्द खुशगवार हैरत का बायस हुआ करता है। मुझे भी खुशगवार हैरत हुई थी जब मैंने कैप्टन रिटायर्ड जनाब अता मोहम्मद खान साहब की गज़ल के अशआर सिटी बैंक में पढ़े थे। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अता मोहम्मद खान साहब DCO सियालकोट से कि वो अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। जनाब कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद खान साहब DCO सियालकोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ अशफाक नियाज़ का कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, मुझे यहाँ बुला के बहुत पुरमगज़ बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, शायरी भी सुनने को मिली। और यकीन कीजिए जो चंद ख्यालात मैंने मुजतमा किए थे अपने ज़हन में वो प्रोफेसर साहब ने पहले ही कह दी। वो प्रोफेसर का लफ्ज़ तो पसंद नहीं करते लेकिन बहरहाल हम एहतराम करते हैं जी फिर उस्ताद तो दरअसल बात वही है तकरीबन जो उन्होंने कर दी। तारीख की अहमियत जो है ना सर मौजूद ख़वातीन हज़रात, वो यही है कि हमने मुस्तक़बिल की आईनादार है तारीख। हमने सबक हासिल करने, अपने किए गुजरा जो भी अच्छा या बुरा वटेवर, एक डिसीजन कोई गलत था या सही था उसकी पूरी तहकीक करके हमें आइंदा चलना होता है। उसमें तारीख बहुत हमारी हेल्पफुल साबित होती है। अब रही तारीख़ सियालकोट की बात, तो सच्ची बात तो ये है कि एक मुसन्निफ, एक कलमकार, एक मुअल्लिफ को बहुत ईमानदार होना होता है क्योंकि उसके पास एक अमानत है। उसने ये किताब आज या कल की बात नहीं है, ये आइंदा सदियों के लिए जैसे फरमा रहे थे रेफरेंस बुक होगी। तो मैं अशफाक नियाज़ को एक महदूद दायरा कार तक रहते हुए सियालकोट TV के हवाले से तो एक दफ़ा मुलाकात हुई। ज़ाती ज़िंदगी आप यहाँ के रेजिडेंट से बेहतर जानते हैं, लेकिन एक अच्छा लगन वाला, एक मिशनरी जज्बे से काम करने वाला लड़का पाया। और कुछ पहलू आज जो मुझ पर आया हुए मुझे नहीं पता था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, बहुत अच्छा लगा। शायर भी हैं, साहिब किताब हैं। तो इस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने भी यकीनन ईमानदारी का मुज़ाहरा किया होगा। क्योंकि मैंने किताब अभी पूरी पढ़ी नहीं, मैं पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। अब तक तो हम गज़टियर्स पढ़ते आए हैं जो अंग्रेज़ के लिखे हुए थे। आई विश कि आपने इसमें बिब्लियोग्राफी को रेफरेंसेस तो दिए होंगे। हाँ, क्योंकि सरकारी सतह पे एक प्रोसीजर है, अशफाक को मैं आपको गाइड कर दूंगा, पूरा भी करा देंगे। तो फिर हम इंशाल्लाह इसको एक रेफरेंस बुक पूरी ज़िले की लाइब्रेरी में मैं रखूँगा।
ताकि आइंदा हमारी जो बच्चे नौजवान बैठे, नौजवान नस्ल आने वाली है, उनको पता तो हो अपनी तारीख का, अपने शहर का, अपने ज़िले का, अपनी हिस्ट्री का। और दूसरी मुझे अच्छी बात लगी, तमाम आपके उस्ताद हजरात ने, आपके साथियों ने, दोस्तों ने, मैं एक तारीफ करना भूल गया, आज की प्रोग्राम कंपेयर कौन से आपके बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छा। मतलब मैं चंद के प्रोग्राम्स में गया हूँ, वहाँ को थोड़ी बहुत मायूसी होती रही है। इन्होंने बहुत अच्छा तलफ़्फ़ुज़ और बहुत अच्छा कंडक्ट करें, शाबाश। अच्छा, तो वो जब इनके बारे में सुना कि माशाअल्लाह वालिदैन के, और उस्ताद भी रूहानी बाप है, वालिदैन का ही दर्जा है उसका। माहिर साहब बैठे, मैंने परसों में कहीं बात की थी, इकबाल का शहर है, पीर रूमी का जिक्र हुआ, उनको वो अपना उस्ताद मानते थे। इकबाल ने बांगेदरा में एक बहुत तवील मकालमा लिखा है, पीर रूमी और मुरीद हिंदी। अब पीर रूमी पर्शियन में बोलता है, मुरीद हिंदी उर्दू में बोलता है। उसमें एक मुकालमा मैं आपको सुनाऊंगा, है तो खासा लगा। मुरीद कहता है अपने पीर से, पीर रूमी से, पढ़ लिए मैंने उलूम शर्क व गर्ब, यानी मशरक मगरब सारा पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिए मैंने उलूम शर्क व गर्ब, रूह में लेकिन है अब तक दर्द व कर्ब, उसकी रूह मुतमईन नहीं हो रही। पीर क्या कहता है उसको? पर्शियन में कहता है, दस्ते हर नाअहल बीमारत कुनत, यानी नाअहल हाथों में जाओगे बीमार हो जाओगे। दस्ते हर नाअहल बीमारत कुनत, सुए मादर आके तीमारत कुनत, माँ की तरफ आओ, वो तुम्हारी तीमारदारी करेगी, तुम्हारी रूह के सारे जख्म भर देगी। अब इसको किस तरफ भी ले जाए कि उस्ताद की तरबियत है, माँ की गोद है, या कुछ भी तरबियत का पहलू है इसमें, तालीम का, इल्म का। तो इस लिहाज से अशफाक आप खुशकिस्मत हैं कि आपका नाम उन लोगों में आ रहा है कि जो उस्ताद की भी और माँ बाप की भी खिदमत करते रहे। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बात माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी हो चुकी, तो यही इनको शाबाश भी दूंगा कि इन्होंने एक अच्छी काविश की, यानी 1088 समय है इसमें, मैं अभी बैठा नहीं रहा, बड़ी बात है। किताब लिखना कोई इतना आसान काम नहीं है। मैं अभी तक एक लिख सका हूँ, दूसरी खैर आ रही है, प्रेस में गई है, लेकिन इंशाल्लाह उससे पहले मैं आपकी ये लाइब्रेरी में भिजवा दूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। न तो ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तो ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोस, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। अब मैं इल्तिमास करती हूँ आज की इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब शाहिद इकबाल डार साहब से कि वो आज की इस तकरीब के हवाले से और जनाब अशफाक नियाज़ की शख्सियत के हवाले से इजहार ख्याल करें। मैं ये भी बताती चलूँ कि डार साहब और अशफाक नियाज़ साहब की रफ़ाकत बहुत गहरी और दोस्ताना है। तारीख़ सियालकोट की तारीफ में शाहिद इकबाल डार साहब का ताउन जनाब अशफाक नियाज़ साहब को हासिल रहा है और आप अशफाक नियाज़ साहब की सलाहियतों का अमली एतराफ़ कर चुके हैं। शहर इकबाल जनाब शाहिद इकबाल डार साहब की इंसान दोस्ती और आला ज़र्फ़ी का एतराफ़ करता है। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब शाहिद इकबाल डार साहब, जो रीजनल बिजनेस चीफ हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जनाब शाहिद इकबाल डार साहब। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबी सय्यदुल मुरसलीन। मोहतरम जनाब कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद साहब, मोहतरमा नसीम अख्तर ख्वाजा साहब, और आज की इस तकरीब में मैं मशकूर हूँ
इशफाक नियाज़ साहब का कि उन्होंने मुझे बतौर मेहमान ख़ुसूसी बुलाया है, लेकिन मैं उनका इस बात पे मशकूर भी हूँ और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि असल के आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वो खुद हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी इतनी अजीम किताब मुरतब की है, तसनीफ़ की है, और इसके साथ साथ आज की जो हमारी मोहतरमा बुखारी साहबा ने कंपेनी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और अहले इल्म व दानिश के दरमियान बैठकर मुझे अपने कम इल्मी का भी एहसास है और मुझे शर्फ भी हो रहा है कि मैं उस्तादों के दरमियान बैठा हूँ। और हमारी बहनों ने भी काफ़ी किताब के बारे में अपने तअसरात के अंदर इशफाक नियाज़ साहब की जो सलाहियतें हैं, जो खूबियाँ हैं उनके अंदर, वो आपके सामने बयान की हैं। इशफाक एक ऐसा नाम है कि जो लिख तो तारीख रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपनी तारीख बना रहा है। वो तारीख के अंदर अपना नाम जिंदा कर रहा है। हजारों साल पुरानी शहर के बारे में जितनी भी तहरीरें थी, जो निशानात इस शहर के अंदर मौजूद हैं, उसका जिक्र इन्होंने जितनी खूबसूरती के साथ किया है वो काबिल सब तहसीन है। और ये काम इतना आसान भी नहीं है कि हर कोई इसको सर अंजाम दे सके। इसकी अंजाम दही में इनकी शख्सियत के बारे में, जो इनकी अपनी वालदा से मोहब्बत का इजहार सब ने किया है, और अपने उस्ताद मोहतरम रशीद नियाज़ मरहूम साहब के साथ उनकी मोहब्बत, बल्कि वालिहाना मोहब्बत का जो इजहार मेरे साथ भी अक्सर जब मेरे पास दफ्तर में आते हैं तो करते रहते हैं। तो मैं खुद भी उस्तादों के जूते सीधे करने में अपने लिए फ़ख्र समझता हूँ कि जब भी मुझे मेरे स्कूल के कोई उस्ताद रास्ते में मिलते हैं तो मुझे खुशी भी होती है और मेरी आंखों में आंसू भी बाद आ जाते हैं कि इन लोगों ने मुझे बनाया है, मैं इन लोगों की वजह से इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और इशफाक साहब को भी ये जो मर्तबा और मकाम अल्लाह ताला ने अता किया है, ये इनके दिल के अंदर जो इज़्ज़त और मकाम इंसानों के लिए और ख़ास तौर पे अपनी वालदा और अपने उस्ताद के लिए जो था, ये उसका अज़ाज़ इनको बख्शा गया है। ये जब भी मेरे पास आते तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी इजहार ख्याल करते कि जो इल्म अदब से मुतल्लिक होता था, शायरी से मुतल्लिक होता था, और इनकी अपनी जो तहरीरें जो ये अक्सर कौमी अखबारों में भी भेजते हैं उनसे मुतल्लिक होता था, अपने प्रोग्राम से मुतल्लिक होता था। ये तरीके सियालकोट, अब मेरा तल्लक चूँकि सियालकोट से है, तो मेरे पास अक्सर कराची से जो मेहमान तशरीफ लाते थे तो मुझे एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी कि जिसके ज़रिए मैं अपने शहर का उनको तारफ़ करा सकूँ। तो मैंने इस किताब को एक दफ़ा पढ़ा और मैंने सियालकोट में सबसे जो बेहतर सोवेनियर मैंने समझा उनको देने के लिए वो तरीके सियालकोट मैंने मुंतखब किया। और मैंने इतनी किताबें तकसीम की कि मार्केट से किताबें मिलना बंद होगी। फिर मैंने इशफाक साहब को फ़ोन किया, इन्होंने अपने दोस्तों के पास जिनके पास कोई कापी महफूज पड़ी होती थी वो मुझे ला के दे देते कि ये आप उनको गिफ्ट कर दें। और फिर एक मरहला ऐसा भी आया कि इस किताब की रवियन के बारे में हमने डिस्कस किया, तो मुझे इनकी सलाहियतों पे मुकम्मल भरोसा था। मैंने कहा कि ये
ایسے شخص کبھی کبھار ہی پیدا ہوتے ہیں کہ جو لگن سے کام کرتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے، میرے ایک انتہائی سینئر آفیسر سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسی چیزیں بتاؤ کہ جس سے انسان زندگی میں کامیاب ہو سکے. تو میں نے کچھ ان کو، میرا تعلق چونکہ بینک سے ہے، میں نے اپنی بینکنگ کے حوالے سے کچھ باتیں کی، لیکن مجھے انہوں نے جو سب سے بڑی، جو سب سے ضروری بات بتائی وہ یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ اپنے اندر جو پازیٹیو سوچ ہے وہ اپنی نیچر بنا لیں، کہ جو پازیٹیو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ اپنے اندر ان کو داخل کر لیں، ایک اپنی ہیبٹ بنا لیں، تو آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے. تو اشفاق صاحب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر بھی پازیٹیو ہی پازیٹیو، نیگیٹو میں نے نہیں دیکھا. اور میں نے جب بھی کبھی ان کو کال کی ہے، ٹیلی فون پہ کسی بھی سلسلے میں بات کی ہے، تو انہوں نے مجھے 100% رسپانس دیا، اور اسی وقت مجھے کہا کہ جی میں ابھی آ جاتا ہوں، اور یہ میرے پاس تشریف لاتے رہے ہیں. تقریب تو ماشاءاللہ اتنی پروکار ہے، اتنی گفتگو ہوئی ہے، اور سارے ہی میرے قابل احترام ہیں. بشیر قمر صاحب، بٹ صاحب، اصغر یقوب صاحب، ان کا نام بھی ہمیں ادب سے لینا چاہیے. تو میں مزید گفتگو کرنا سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا شاید اتنا صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے. کافی ٹائم ہو گیا. ایک شعر جو ہے نا وہ میں اس پہ اس تقریب کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹ جاتے ہیں سب الفاظ و معانی کے تلسم، ٹوٹ جاتے ہیں سب الفاظ و معانی کے تلسم، بے زبانی میں عجب قوت گویائی ہے. تو اس تقریب کا اختتام میں اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کے اس عظیم نوجوان کو اس کی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کرے، اور جو اس کی سوچ ہے کہ زندگی میں جو بڑے کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اس کو زندگی میں ایسی کامیابی نصیب ہوں کہ جو اس کا حوالہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو دہشت گردوں سے محفوظ فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اب میں گزارش کرتی ہوں صاحب کتاب اور آج کی اس تقریب کی اہم ترین شخصیت میرے بہت مہربان جناب اشفاق نیاز صاحب کو کہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں، اپنے خیالات مجھ سے شیئر کریں. جناب اشفاق نیاز صاحب. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. بہترین ذکر کلمہ طیبہ کا ورد ہے، اور بہترین دعا خدا کا شکر ادا کرنا ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل احترام محترم جناب شاہد اقبال ڈار صاحب، جن کی بہت سی مہربانیاں سمیٹے ہوئے آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. انتہائی محترم جناب کیپٹن ریٹائرڈ عطا محمد خان صاحب، ڈی سی او سیالکوٹ، محترمہ بیگم نسیم ناصر خواجہ، جن کا خاندان تعلیمی حوالے سے بھی اور شہر میں بہت سی مثالی خدمات کے حوالے سے جانا جاتا ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج خصوصی طور پر لاہور سے میرے ان سے فون پہ بات صبح بھی ہوئی، دوپہر کو بھی ہوئی، سپہر کو بھی ہوئی، اور یہ لاہور سے سیدھا اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے. میں
ममनून हूँ इनका ज़ाती तौर पे कि इस तकरीब में शिरकत की यहाँ शिरकत। और मखदूमा बुखारी साहिबा, इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मेरी एक बात मानी। मैंने पहले दिन कहा था कि अपनी बीमारी का जिक्र नहीं कर, लेकिन बीमार बहुत थी, तो उन्होंने एक जुमला बोला कि माँ जी तुसी बीमार नहीं, एवं झूठ बोल रहे हो। बीमार असी ओनू कहने जेड़े बंदे नूं स्ट्रेचर ते पा के ले आइए, तो जेड़ा बंदा अपने पैरों से टुर के आंदा है वो बीमार नहीं। तो मेरा ख्याल है आप सब लोग गवाही देंगे मासूमा बीमार है, मखदूमा बीमार नहीं। अपने ये से बात निकाल दें। माशाल्लाह आप सियालकोट का एक सरमाया है, टैलेंट है, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपके टैलेंट से और आपका जो फन है, फिक्र है, उसको जो है वो शहर इकबाल में लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचाएं। और इसके अलावा मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका शुक्रिया अदा करूं जनाब हसन अली भट्टी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जनाब फारूक मायर साहब यहाँ पे बैठे हैं। मेरे अल्फाज जो हैं ये कम हो जाएंगे कि इन्होंने इतना मेरे साथ कोऑपरेट किया, इतना कोऑपरेट किया कि मैंने जब भी हमने इनसे हॉल के लिए गुजारिश की, जब सुदाई साहब का प्रोग्राम था, तो इन्होंने बड़ी फराहदिली का मुजाहरा किया। और आज भी मैं समझता हूँ फारूक माहिर साहब यकीनन इनकी इजाज़त के बगैर, इनके नोटिस में लाए बगैर कोई काम यहाँ पे सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो मैं इनका ममनून हूँ। और जनाब तूर साहब जो हैं इन्होंने भी बड़ी मुशक्क़त फरमाई हमारे साथ, और हाल में जितनी हमें चीज़ों की ज़रूरत थी उन्हें हमें वो प्रोवाइड की। इसके अलावा जहाँ तक बात है तारीख़ सियालकोट के हवाले से, तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया हूँ कि मैंने जो काम किया उसके लिए यकीनन वो कहते हैं वो जो गाने वाला होता है उससे बेहतर सुनने वाले होते हैं। आज मैं तो गाने वाला था ही, लेकिन सुनने वाले यहाँ पे ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है आपकी तरफ से जो मेरी हौसला अफजाई आज हुई है, और मैं यकीन से कहता हूँ कि जहाँ मैंने एक वक्त में 19 किताबें जो है वो शुरू कर ली थी, और मेरे घर वाले जो सरपटा गए थे कि इसने क्या काम शुरू कर दिया है, ये हर वक्त रातों को भी दिन को भी, मेरी बेगम भी यहाँ पे मौजूद है, वो सामने पीछे बैठी हैं, तो वो अक्सर कहती हैं कि आप साहब तुझे लगता था बेड़ा गर्क करके रहोगे, किताबें ही लिखते रहो सारी जिंदगी। तो मैंने एक वक्त में 19 किताबें जो है वो शुरू की, जिनमें से 10 किताबें जो है वो मंज़िल आम पर आ चुकी हैं, और 9 किताबें इंशाअल्लाह ताला वो भी एक एक करके वो मैं मंज़िल आम पर लाऊंगा। अभी हाल ही में मैंने इन दिनों में जहाँ मैंने 19 किताबें शुरू की हुई थी, एक किताब और मेरे ज़िम्मे लगा दी गई, वो दरबार कमेटी पीर मुरादिया रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पे एक दरबार कमेटी है। यहाँ पे सलीम मुगल साहब मेरे इंतहाई मोहतरम, आप फोटो पैलेस बैठे हुए हैं, इनकी तहरीक से मुझे उन्होंने कहा कि एक डस्के की एक पार्टी है, तो वो चाहते हैं कि बुजुर्गों पे एक काम जो है, किताब जो है एक मुरतब होनी चाहिए। सियालकोट के हवाले से कोई किताब इस हवाले से नहीं है, तो एक रंगीन किताब हम चाहते हैं। तो वो 200 सफ़े के करीब अगर आप हमें तैयार कर दें तो हम आपकी खिदमत भी करेंगे। और मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं सामने बैठे हैं सलीम साहब, मैंने कहा मुझे किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं है, बुजुर्गों का काम है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, जब हमारे पास फंड्स हैं तो हम आपकी खिदमत करेंगे, और वाकई लोगों ने मेरी खिदमत भी की। उन्हीं पैसों से आज मैंने बहुत से काम जो है वो अभी मुझे बल्कि पेमेंट जो है वो बकाया मिलनी थी, लेकिन सलीम मुगल साहब ने अपने पास से मुझे जो पेमेंट की कि आपका ये हक बनता है, मैं कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा, आप अपना काम जो है उसको रोके ना। तो मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वो किताब है रोशन मीनार, ये अजाफी एक किताब जो है ये मुझे अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे लगाई कि मैं ये कारनामा भी सर अंजाम दूँ। और वो मैंने 224 सफ़ात की किताब जो है वो तैयार करके इनके हैंड ओवर कल ही मैंने कर दी है इंशाअल्लाह। वो किताब जो है सियालकोट में पहली किताब होगी रंगीन, जो कि औलिया इकराम के हवाले से होगी। बात तारीख़ सियालकोट की हो रही है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सियालकोट की जो तारीख़ है, इसका जो टाइटल आप देख रहे हैं फ्रंट पे, इसको बिल्कुल मेरे जहन की अगर 100% अक्कासी की है तो वो यहाँ पे एक नौजवान बैठे हैं, मैं उनसे इल्तिमास करूँगा कि वो खड़े हो। मोहम्मद कासिम मिन्हास, ये आप खड़े हो भाई। ये है जी जिन्होंने, ये बड़ी बदध्यानती होती है कि जैसे अभी मेरे मोहतरम शायद डार साहब ने कहा कि जो शख्स को काम करता है उसको अप्रिशिएट ना करना।
तो कासिद मिनहाज साहब ने इसका जो है वो टाइटल जो है जैसे मैं इसे बताया बिल्कुल मेरे ज़हन के मुताबिक इस मेरे भाई ने मुझे वो तैयार करके दिया, बल्कि दूसरी किताबों के भी इन्होंने ही मुझे वो तैयार करके दिए हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान साहब यहाँ पे मौजूद हैं JR स्कैनर्स के, इन्होंने भी बड़ा ताउन जो है हमारे साथ किया। जब पॉजिटिव बन रहे थे तो इस भाई ने भी कहा कि इशफाक साहब हम पॉजिटिव जो है उसके हम पैसे चार्ज करेंगे, लेकिन जो हम आपकी डिज़ाइनिंग करेंगे, आपकी जो स्कैनिंग जो भी हम करेंगे, हम उसके पैसे आपसे नहीं लेंगे। इस भाई ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। मैं कहूँगा इन दोनों भाइयों के लिए तालियां अगर बजा दें तो मुझे खुशी होगी। इसके साथ साथ आज यहाँ पे जो कवरेज के लिए भी यहाँ पे मौजूद हैं जनाब चौधरी मोहम्मद सफदर साहब, रोजनामा नवाए मिल्लत और मिल्लत चैनल, सियालकोट टेलीविजन की रिकॉर्डिंग जो है मोहम्मद बूटा कादरी साहब ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह सोमवार के रोज आप ये प्रोग्राम सियाल STV पर प्रोग्राम मेरे शहर में जो मैं 19 माह से कर रहा हूँ, वीकली प्रोग्राम मेरे शहर में, उसमें आप इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की पूरी रिकॉर्डिंग है वो देख पाएंगे। और मोहम्मद बूटा कादरी साहब ये भी हमारे साथ बड़ा ताउन करते हैं, बेलौस हमारे साथ जो है ये चलते हैं, सिविल डिफेंस से भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और इसके साथ जनाब खालिद महमूद फारूक साहब जिनका शहीद स्टूडियो है, इन्होंने भी हर प्रोग्राम में जब भी हमारा इधर प्रोग्राम हुआ हो, सुदाई साहब का हुआ या दीगर प्रोग्राम हुए, उन्होंने हमेशा जो है वो हमारी कवरेज जो है कि आज भी इन्होंने हमारी जो है कवरेज के लिए जो बेड़ा उठाया। इसके साथ साथ जनाब काशिफ मुनीर एडवोकेट यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने तारीख सियालकोट आने के बाद यानी कि 2 हफ्तों के दौरान 2 मरतबा मुझे रेडियो पाकिस्तान पर लाइव मेहमान की हैसियत से दावत दी। जनाब सैयद शहबाज हैदर साहब जो स्टेशन डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे कि इशफाक साहब आपने जो है वो अच्छी बातें की हमारे साथ शेयर, तो आप हमारे रेडियो पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक हो, इसके लिए आप लाइव अपडेट भी दिया करें प्रोग्रामों की। तो मैं उनका भी ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये भी एजाज़ दिया कि मैं रेडियो पाकिस्तान के लिए भी प्रोग्रामों में अपडेट जो है वो इंशाल्लाह दिया करूँगा। काशिफ मुनीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। FM 101 की एक और जानी पहचानी आवाज़ जनाब आमर शफीक साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये है तो ये ब्लाइंड लेकिन बड़े ही बासलाहियत नौजवान हैं, इन्होंने भी मुतअद्दिद प्रोग्रामों में हमारे किताब के हवाले से और बड़ा जो है अप्रिशिएट किया। ये मैंने इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मे भी कि दोबारा ये वक्त मुझे मिले ना मिले, ज़िंदगी का तो भरोसा कोई नहीं है ना, मैंने घर भी पहुँचना है कि नहीं, लेकिन ये इंसान की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने वाकई मेरे साथ जो है ये तावन किया है, मेरा साथ दिया है, मैं उनका बड़ा ममनून हूँ। मुदस्सर राना साहब ने बड़ा ये भी इनका बड़ा ताउन है कि ये भी अपने प्रोग्रामों में पंजाबी टच करते हैं। ये अभी परसों ये कह रहे लोग इशफाक साहब पंजाबी एक गीत तो हम सुना देने हैं, तो ये भी माशाल्लाह हमारे से बड़ा ताउन करते हैं। किताब के हवाले से इन्होंने बड़ा जो है ये ताउन किया। नवीद मुराद साहब ये भी रेडियो बुराक से वाबस्ता है, ये भी यहाँ पर मौजूद है, मैं इनका भी जो है ये ममनून हूँ। और हाफिज इमरान साहब ये इन्होंने भी हमारे साथ बड़ा जो ये ताउन किया है। और ताउन से मुराद ये है कि ज़रूरी है ताउन होता है कि हम ताउन को पैसों की मदद भी लेते हैं। मैं ताउन उसे कहता हूँ जो हमारा साथ देता है, हमारा जब कभी आवाज़ दे तो वो हमारा साथ दे। लेकिन ये एक चेन चलती है, जो लोग कहते हैं ना कि हम अक्सर तो ये कहते हैं कि जैसे कहा था ना उसने वासफ अली वासफ ने कि इंसान अपनी तमाम उम्र फिरौन की तरह गुजारता है, लेकिन आखिरत जो है वो मूसा जैसे चाहता है। लेकिन अगर आपने अपनी आखिरत जो है वो ठीक करनी है तो आपको किरदार भी जो है वो मूसा वाला अपनाना होगा। अगर मेरी बात जो है शायद इकबाल डार साहब ने सुनी, मैंने इनकी बात सुनी, तो इसी तरह मुझे यकीन था कि जिसे मैं कहूँगा वो मेरी बात भी सुनेगा। और मेरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा लम्हा नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बैठे हैं, मेरी बहनें इधर बैठी हैं, कि मेरी माँ ने मुझे क़यामत तक मुझे थापड़ा दिया था कि बेटा मैं क़यामत तक तुम्हारे लिए मैंने दुआ कर दी है कि तुम जिंदगी के जिस महाज में जाओगे, अगर तुम नाकाम हो गए तो मेरी कब्र पे आके मुझे बेशक बुरा भला कह देना। तो मेरा ईमान है कि जो माँ की दुआ होती है, माँ की दुआ से जो है वो माँ जो है वो पैगम्बरों को जन्म देती है, माँ जो है वो बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों को जन्म देती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं उस माँ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी अच्छे माहौल में तरबियत की। मैं अपने उस्ताद गिरामी जनाब रशीद नियाज मरहूम जिनका 19 साल हुए, उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है, और हमारे
तमाम लोग जानते हैं कि मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि उनका बाकायदा जो है वो ख़त्म शरीफ का एहतमाम करता हूँ, कुरान खानी भी करवाता हूँ, और कोई लम्हा ऐसा नहीं है, वो मेरी पूरी खून के एक एक ज़र्रे में उनकी ज़ात जो है वो सराइत कर चुकी है। मैं अपने उस्ताद गिरामी का कभी एहसान नहीं दे सकता कि उन्होंने पता नहीं अपने किस शऊर की आंख से देखा था। उन्होंने मुझे अपना न्याज नाम जो है खुद अपने हाथ से लिख के दिया था। मैंने कहा था कि सर मुझे नहीं ये नाम चाहिए, ये बात है 20-22 साल पहले की। मैंने कहा सर मुझे ये, मैंने क्या करना है, मेरा नाम जो इशफाक है। मतलब ठीक है। तो मुझे उन्होंने कहा बेटे ये नाम आपको नहीं पता कि मैं आपको दे रहा हूँ, और ये नाम आपके पहचान बनेगा एक वक्त में। अगर लोग आपका नाम भूल भी जाएंगे तो वो ये जरूर वो एक न्याज लड़का हुआ करता था। तो यकीन करें वाकई मैंने हज़ारों लोगों से, अगर कोई मेरा नाम भूल भी जाता है तो ये कहते हैं वो न्याज लड़का है। मेरे मुझे उस्ताद का वो कौल याद आ जाता है। उस्ताद जो होता है वाकई एक, मैं समझता हूँ वो एक तश्कील करता है एक इंसान की, जो है वो ज़मीन से उसे आसमान पे लेके जाने में उस्ताद का जो है ये बड़ा किरदार होता है। तो मैं रशीद नियाज़ मरहूम जो मेरे उस्ताद गिरामी थे, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर मुझे लिखना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, तो मुझे छड़ी लेके वो मारा करते थे। कहते थे कि तुम अशफाक ये लफ्ज़ तुमने गलत बोला। अभी स्कूलों कॉलेजेस में आप भी लोग लफ्ज़ बोलते हैं, तुलाबा, अजीज़ तुलाबा बोलते हैं। मैं जहाँ भी कभी गया हूँ कॉलेजेस में, मेरे उस्ताद ने मुझे छड़ी से मारा आज से 26 साल पहले। उन्होंने कहा तुलाबा नहीं तलाबा होता है। तालब इल्म जो है वो जिसको इल्म की तलब होती है वो तालिब इल्म होती है, तो वो तालिब इल्म होता है, लिहाजा लफ्ज़ तलाबा बेटे इस्तेमाल करा करो। तो उस्ताद जो है वो रहनुमाई भी करता है। तो मैं समझता हूँ मेरे उस्ताद गिरामी ने मुझ पर बहुत से एहसानात किए। जब वो आखिरी वक्तों में बीमार थे तो हम उनके घर में जाया करते थे, बल्कि मैं शुरू से ही उनके घर में छोटा सा तो जाया करता था। तो अपने आखिरी वक्तों में आज मैं आपको ये भी राज की बात बताऊं मेरी कामयाबी की, शायद आप लोग जो बैठे हैं अगर किसी को कभी मौका मिले तो अपने असातिज़ा और वालिदैन की खिदमत ज़रूर करें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो बंदा कभी नाकाम नहीं हो सकता। मैं अपने उस्ताद साहब के बीमारी के दिनों में, जब कोई शख्स बीमार होता है तो लोग उन्हें हाथ नहीं लगाते। जब जख्म पड़ जाए, पीप पड़ जाए, तो कोई शख्स किसी के करीब नहीं जाता, चाहे माँ बाप ही हो। मैंने देखा है, मैंने ऐसे लोग भी देखे। तो मैं उस्ताद गिरामी जब उनके पाँव में, टांगों में जब पीप भी पड़ी हुई थी, बीमार थे और सारा उनका पाँव सूजे हुए थे, मैं रोज़ जाके सुबह उनके पाँव ताबड़े में गर्म पानी में रख के तो रुई के साथ साफ करता था। तो मेरे उस्ताद, उनकी बीवी कहती थी ये जुल्म पे कर दियो, वो बच्चा पढ़न लिया आया है, तुझे केड़े काम लाया है। तो कहते थे वो अपनी मर्जी से खा है। तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कहता हूँ काश काश मुझे सारी जिंदगी मरते दम तक ये मौका मिलता है कि उनके मैं पाँव ही साफ करता रहता, तो मेरे लिए जो है इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो उस्ताद और वालिदैन जो है वो जो लोग इनकी कदर करते हैं वो कभी जो है वो नाकाम जो है वो नहीं होते। और इसके अलावा मेरी जो ये 20 साल जो कैरियर था उसमें जब मेरे उस्ताद मोहतरम फौत हुए, वो एक ही शख्स था जिसने मेरी तरबियत की थी, लेकिन उनके फौत होने के बाद जो मुझे शख्सियत मिली, जिन्होंने मेरी रूहानी तौर पर भी तरबियत की और मुझे सहारा भी दिया, वो है जनाब बशीर कंवर साहब, यहाँ पे मौजूद है। और ये वाकई सियालकोट की एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है और इनका किरदार और फन, यकीन करें कि पाकिस्तान में बारीक तरीन खताती के मौजूद हैं। सबसे पहले चावल के दाने पर, दाल के दाने पर सबसे पहले बशीर कंवर ने जो है ये खताती की थी और पूरी दुनिया में अपना नाम जो है ये बनाया था। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इनकी जो है कदमों में बैठने का मौका मिला। बाद लोग इधर साफी भी बैठे होंगे, वो कहते हैं यार जब तुम देखो बशीर कंवर के साथ फिरते होते हो, कभी मोटरसाइकिल पर लिए इधर घूम रहे हो, इधर जा रहे हो, घर छोड़ने जा रहे हो, ये कर रहे हो, उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या राज की बातें होती हैं जी। ये कहते हैं कि हर लफ्ज़ तो कागज पर उतारा नहीं जाता, हर लफ्ज़ तो कागज पर उतारा नहीं जाता, हर नाम तो सरेआम पुकारा नहीं जाता, और मोहब्बत में होती हैं बहुत राज की बातें, यूं ही तो इस खेल में हारा नहीं जाता। ये है कि बशीर कंवर का मुझे जो है साथ मिला, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। और इस दौरान 19 साल कैरियर में जनाब खालिद लतीफ़ साहब जो सिटी मैग के चीफ एडिटर हैं, दानिश परवर हैं, और ये भी नौजवानों को जो है वो ये आँख रखते हैं, शऊर की आँख। यकीन जानिए इनके अंदर एक शायर भी है, अदीब भी है, मौलवी भी है, सहाफ़ी भी है, सब कुछ है। ये
انہوں نے مجھے میرا بڑا ساتھ دیا. اگر میں ان کا ذکر نہیں کروں گا یہ بددیانتی ہوگی. میں نے پہلے کہا ہے کہ زندگی موت کا پتہ نہیں. آج مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, میرے والد سے بھی تقریب ہے, تو یہ بھی میڈیا میں یہ بھی بات جو ہے یہ جا رہی ہے, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو میں خالد لطیف صاحب کے کردار کو کبھی زندگی میں مرتے دم تک میں یہ فراموش نہیں کر سکوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ خالد لطیف جو ہے انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. اور آخری موقع پہ جو کردار جناب شہد اقبال ڈار صاحب نے میرے ساتھ ادا کر دیا ہے, میں اگر لفظ بولوں گا تو وہ لفظ جو ہے وہ بہت چھوٹے نظر آئیں گے. یقین جانیے اگر سیالکوٹ میں شہد اقبال ڈار جو ہے وہ 4-5 اور آ جائیں تو یقین جانے سیالکوٹ کا کلیان ہو جائے. خدا کی قسم اتنی زبردست شخصیت ہے اور بے لوز, یقین جانیے بے لوز. مجھے کہتے ہیں اشفاق آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ, جو آپ کو چاہیے, پیسے چاہیے, جو مرضی چاہیے. لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے واقعی اس کی جس کی ضرورت ہے وہی کہہ رہا ہے. اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا, اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کہا. ان جو پچھلے دنوں مجھے ایک اور صاحب مل گیا, وہ ایک تقریب تھی میری کتاب کی, تو وہ کہتے ہیں میرے بھائی ایوب صاحب بیٹھے ہیں, انجم صاحب, انہیں کہتے ہیں یار بندہ جڑا منو دے دیو تسی, اے بندہ منو پکا دے دیو, میں خریدنے لیے تیار. وہ کہتے ہیں بھا جی لے جاؤ, مفتی لے جاؤ, تسی خریدنا کی مفتی لے جاؤ, تسی قدردان. وہ مجھے اپنے گھر میں لے کے گئے. ان دن میری کتاب قرآن جو ہے یہ تیار ہو رہی تھی. میری میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرتا ہے. جب وہ کام کرتے ہیں میری ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا, سبب پیدا کیا. وہ اعجاز قریشی صاحب تھے, آپ جو جانتے ہیں, زیادہ وہ امینہ گلی گھومن کے بھائی. انہوں نے جناب مجھے کہا اشفاق صاحب آپ نے کوئی کام مجھے کرا. وہ کہتے ہیں بار بار روز گھر جا رہے ہیں, اور یار منڈے لیے منو کو کام دسو, یار منڈے لیے منو کو کام دسو. اور منڈا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا کام کرتا ہے. کہتے ہیں جنہوں پوچھ لو جو کہتا ہے. مجھے کہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے یہ کام کرنا ہے. مجھے انہوں نے 60,000 روپے, تو یہ صاحب 60,000 روپے مجھے انہوں نے دیے. انہوں نے کہا اشفاق آپ نے یہ کام جو ہے کرو, یہ آپ کو میں نے دیے. میرے گھر آ کے اتنے نوٹوں کی جو ہے وہ گٹھلی جو ہے میرے گھر میں آ کے مجھے دے کے گئے. اشفاق ہے پڑھ پتر اپنا کام جو چاہیے, مطلب کہہ رہے تیرے میں پیسے. تو میں نے کہا چونکہ میں نے تو کتاب ہی کروانی تھی. میں نے وہ حیران ہو گئے کہ کتاب پہ غالباً 30,000 روپے یا 30,000 روپے غالباً لگا تھا, 25,000 روپے لگا, 25,000 روپے نہیں 25,000 روپے لگا تھا. اس میں 25,000 روپے لگا. تو میں 35,000 روپے جا کر کے اکاؤنٹ میں جمع کروا کے تو ان کو رسید دینے گیا تو وہ لڑ پڑے میرے ساتھ. کہتے ہیں یار تو کیوں جب بندہ پاول ٹکرے میں تینوں میں 60,000 تو 35,000 روپے میں واپس دینا آ گیا, میں 45,000 واپس دینا آ گیا, 35,000. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان نیک, انہیں بھی یہ پتا چلا کہ اس بندے نے نیک نیتی سے کام کیا. تو جب آپ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے اور آپ جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وقار احمد صاحب جو سمڑیال سے یہاں پہ آئے ہیں, ماہر تعلیم ہے, ماشاءاللہ میری خصوصی دعوت پہ یہاں پہ آئے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محترمہ ڈاکٹر نسیم شکیل صاحبہ, چیئرپرسن BSWC, انہوں نے یہ ایک تحریر جو ہے یہ میرا شکریہ ادا کیا ہے کتاب مرتب کرنے پر, انہوں نے اپریشیٹ کیا مجھے. اس کے ساتھ ساتھ سمیرہ چودھری صاحبہ ہیں, ایم اے اردو, ایم اے ہسٹری, ایجوکیشن, ویمن اسٹڈی, یہ کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کالم نگار بھی ہیں. انہوں نے بھی یہ بڑے اچھے الفاظ جو ہیں یہ لکھے ہیں, میں ان کا بھی جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جناب شاہد منظور بھٹی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, نیشنل بینک سے ان کا تعلق ہے, اور یہ بہت نامور صحافی جناب منظور بھٹی صاحب کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے بھی جب بھی کبھی ہم پروگراموں میں کبھی کوئی ضرورت پڑی تو یہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں. جناب ایم عابد صاحب ہیں, ماہر تعلیم ہیں. جناب زید زلفی صاحب ہیں یہاں پہ موجود ہیں, ساحل چودھری صاحب, محمد ارشد صاحب ہیں, بٹ صاحب جو ہے, نصیر بٹ صاحب, سب چیزیں جو ہے میرے جانے پہچانے ہیں. اور میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں. آپ نے مجھے بہت جو ہے یہ مان دیا. جناب پروفیسر اعجاز بٹ صاحب نے کتاب کو جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ قرار دیا. جناب DCO صاحب نے اسے پورے ضلع کے لیے جو کہا. میرے پاس اپروول بھی موجود ہے ضلع کے لیے بھی, اور جو میں نے پہلے جو کتاب کی تھی, اور پنجاب گورنمنٹ کی بھی میرے پاس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو شاید یہ کتاب آگے جو ہے وہ شاید وہ آگے نہ ہم اس کو پہنچا سکیں. تو میں امید رکھوں گا کہ DCO صاحب نے جو آج وعدہ جو کیا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا کرے گا. مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ان کے سیالکوٹ میں جتنے بھی انہوں نے کام کیے ہیں واقعی وہ مثالی کام ہے. سیالکوٹ میں یہ جب سے آئے ہیں ایک سیالکوٹ ایک متحرک جو ہے وہ ہو گیا ہے.
तमाम शोबों में इन्होंने एक हलचल जो है पैदा किया है, और ये जिस काम को पकड़ते हैं उसके पीछे खबरगिरी भी रखते हैं। छोड़ते रहिए जब तक वो काम जो है कंप्लीट ना हो जाए। मैं दुआ को हूँ इनके लिए भी, और शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा बेगम नसीम नासर ख्वाजा का, जनाब शाहिद इकबाल डार साहब का, और मखदूमा बुखारी साहबा का, कि इन्होंने हमें इतना मान दिया यहाँ पे आके जो है। इन्होंने बीमारी की हालत में भी, जब ये इनकी तबीयत जो है वो इस तरह थी कि ये आना नहीं चाह रही थी, तो मैंने कहा आप आएँ, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी चीज़ आस्ता आस्ता जो है ये ख़त्म होती जाएगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है वो तंदुरुस्ती दे। और मेरा ख्याल है आप लोगों ने सुना है, इनकी कंपेयरिंग सुनी है, इनका तलफ़ुज़ देखा है, इनका कलाम देखा है, तो मैं समझता हूँ सियालकोट में इल्मी भी हवाले से, शेर व अदब के हवाले से ये बड़ा खुशगवार इजाफा है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मखदूमा बुखारी का नाम शेर व अदब के हवाले से सियालकोट के माथे पर दरख्शिंदा झूमर की तरह चमकता रहेगा। इसके साथ ही मैं एक मरतबा फिर आप तमाम हज़रात का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बड़ा मान दिया, बड़ा प्यार दिया, आप खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ आप लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।